Assalamualaikum. So today we'll be starting off with chapter number 4, unit 4, topic number 1, which is production of goods and services. So the learning objectives for today are the meaning of production, what is production, difference between production and productivity, formulas क्या productivity के, why business hold inventories, concept of lean production, main methods of production, job, batch and flow, and how technology has changed production methods using computers in design and manufacturing. So to start off, let's first discuss what is operations management and production. So production is the creation of goods and services. We all know what production means. Operations management, on the other hand, is the set of activities that create value in the form of goods and services by transforming inputs into outputs. यानी वो सारी एक्टिविटीज होंगी जो ट्रांसफॉर्म करी हैं या कन्वर्ट करी हैं इनपुट इनटू आउटपुट्स ना इनपुट्स क्या होते हैं जो भी आप फैक्टर्स इनपुट्स यूज करते हैं मटेरियल है लेबर है उसको जब आप प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट करते हैं इनटू आउटपुट आउटपुट ऑफ व्हाट आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज all those activities come under the definition of operations management, right? Operations department in a firm overlooks the production process. In simpler terms, production process basically is overlooked by the operations department. Uske functions kya hai? Use the resources in a cost effective and efficient manner. Cost effective means kam se kam cost mein, and efficient manner means with less wastage. आपने resources को utilize करके production करनी है. Then operation department manages the inventory effectively, again reducing the wastage and trying to minimize the cost. Produce the required output to meet customer demands. जितनी demand है उसके according आपने production करनी है. The operation department and meet the quality standards expected by customers. Obviously, if you will give quality, then you'll be able to remain sustainable and people will continue to buy from you. So then what is productivity? It is a measure of the efficiency. Productivity ka jo taluk hai, that is purely with efficiency of inputs used in the production process over a period of time. So how productive is your labor, for instance? Okay, we'll calculate as well in a while. It is the output measured against the inputs used to produce it. Yani kitna output in a given on average itne inputs pe kitna output ban raha hai. Okay, that's productivity. The more higher the productivity, more the output. In other words, okay. So productivity का जो general formula है that is output divided by input. तो इसका जो भी आंसर आएगा it will be in the form of, for example, 100 output per a particular input. Input could be labor hours, could be number of employees. Again, for example, labor productivity है. So value of goods and services produced, which is your output, divided by the input. Input in this case would be labor productivity, which means input man hour. यानी इसका जो आंसर आएगा पर labor hour आएगा कि एक घंटे में इतना output produce होता है, right? For instance, company generated 80,000 worth of goods in 1500 hours. Calculate the labor productivity. Now the output is given $80,000. ठीक है, उसकी worth है 80,000. And the input is of 1500 hours. तो अगर आपने hours पे productivity निकालनी है तो you can say कि आप basically generate करें $53 per hour of work. यानी एक घंटे में आप generate कर रहे हैं $53, right? In other words. Then similarly, अगर आपने number of employees को input बनाना है कि यार एक employee on average मुझे कितना output देता है, उसके लिए क्या example है? Company generated $80,000 worth of goods and services with 30 employees, which means I can easily tell कि यार per employee कितना output है. 80,000 divided by 30 employees. So $2,666 per employee a week. So this gives you basically an average कि on average आपका एक input का unit depend करता है R है या number of employees है, एक unit कितना output आपको produce करके दे रहा है, कितनी sale generate करके दे रहा है, right? Ways to improve productivity, अगर इसी को improve करना हो तो फिर क्या ways हैं? Create a family for the business, ठीक है? Create a family-like atmosphere. Obviously, if you are comfortable, you will be more productive. Know your employees' background so that you can help them to get better. ठीक है? कौन किस तरीके से बेहतर हो सकता है? Train and retrain. Obviously, training makes you good, if not perfect. तो अगर आप जितना train करेंगे उनको उतना efficient वो हो जाएंगे. Provide small incentives. For instance, if you increase your productivity, so you'll be given a bonus or something like that. Make your word the final say. If you have to increase your productivity, then it has to be the case. ठीक है?
Remember that they have lives outside the office, which means it does not mean कि आपने प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो आप ये कहेंगे अच्छा जी यू हैव टू स्टे इन द ऑफिस 24/7. यू हैव टू गिव देम द प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस. ठीक है, अगर टाइम पे छुट्टी हो रही है यू लेट देम गो, क्योंकि उसके साथ साथ उनकी प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहेगी. अगर आप 9 घंटे के बजाय उनसे 12 घंटे काम करवाएंगे तो ऑब्वियसली दोज 3 आवर्स दे विल बी मोर टायर्ड एंड दे विल want to go home, right? उनकी प्रोडक्टिविटी पे लूज हो जाएगी. गिव देम द राइट इक्विपमेंट. अगेन टेक्नोलॉजिकली एडवांस होना चाहिए कंपनी को, क्योंकि टेक्नोलॉजी बेसिकली increases your efficiency. Answer any question, कोई भी question है, the management, the business needs to answer that so that उनकी confusions दूर हो. And celebrate victories no matter how small. Recognition which means, ठीक है, इससे वो motivate हो जाएंगे. Motivation leads to increase in productivity. Be a role model and prove that all employees are equal so that no one feels left out. All right. ये है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के तरीके. देन इन्वेंट्री मैनेजमेंट. अब बेसिकली व्हाट इज इन्वेंट्री? इन्वेंट्री आर दोज गुड्स जिस चीज का आपका बिजनेस है फॉर रीसेल पर्पस, राइट? हाउ डू यू मैनेज इन्वेंट्री, उसकी अब हम बात करेंगे. सेट ऑफ ऑल दोज प्रोसेसेस व्हिच यू विल यूटिलाइज टू ओवरसी एंड ऑर्गेनाइज योर गुड्स और मटेरियल्स इन योर फैसिलिटी. ठीक है, बेनिफिट्स क्या होंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट के? कीप्स ट्रैक ऑफ योर इन्वेंट्री एंड ऑफर्स अ सेंट्रलाइज्ड व्यू ऑफ स्टॉक. यानी आप इजीली ये देख सकते हैं कि कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, कितनी रिमेनिंग है, एक्सेट्रा. कंट्रोल्स योर कॉस्ट बाय मेकिंग स्टॉक रिपोर्ट्स फॉर एनालिसिस ऑफ योर इन्वेंट्री. अगेन रिपोर्ट करना आसान हो जाता है, रिपोर्ट फॉर्मुलेट करना आसान हो जाता है. इम्प्रूव योर डिलीवरी बाय मैनेजिंग स्टॉक आउट्स. स्टॉक आउट्स मीन्स के इन केस स्टॉक लेवल इज जीरो, देन ठीक है. तो इम्प्रूव योर डिलीवरी बाय मैनेजिंग. आपने कब रीऑर्डर करवाना है इन ऑर्डर टू अवॉइड स्टॉक आउट्स, वो ज़्यादा सारा पॉसिबल हो जाएगा. एंड मीटिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन सो दैट आप कभी भी यू आर नॉट लेफ्ट विद जीरो इन्वेंट्री. देन ठीक है, ये उसको मैनेज कर लेगा डिलीवरी को. मैनेजेस प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग बाय एनालाइजिंग डेटा ट्रेंड्स. क्या डेटा है, कितना बिकता है, कितना आपने मंगवाना पड़ता है, ये डेटा आप यूज कर सकते हैं, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. एंड रिड्यूसेस द टाइम फॉर मैनेजिंग इन्वेंट्री बाय कीपिंग रिकॉर्ड्स इन प्लेस. अगर आपके पास रिकॉर्ड्स अपडेटेड है, एंड आजकल तो वी हैव ऑटोमेटेड रिकॉर्ड्स, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर पे स्टोर हो जाते हैं. सो यू डोंट इवन नीड टू काउंट द इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द डे, जिसके लिए मैनुअल लेबर चाहिए. तो अभी आपके पास रिकॉर्ड होता है. फॉर इंस्टेंस वी गो टू अ मार्ट और एनी अदर जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगे होंगे, वो बारकोड से एक तो आपके रिसीट भी बना देता है व्हेन दे स्कैन द प्रोडक्ट्स व्हिच द कस्टमर्स आर बाइंग. दूसरा उनकी इन्वेंट्री रिकॉर्ड भी अपडेट हो रहा होता है कि नाउ इसके इतने यूनिट्स रह गए. ठीक है, सारी अपडेट हो रही होती है इंफॉर्मेशन. देन द कॉन्सेप्ट ऑफ रीऑर्डर. देखो इसको थोड़ा सा समझना है, ऑल्दो दिस माइट नॉट बी टेस्टेड, बट ये आपको समझाने के लिए कि हाउ कैन यू यूज दिस लीड टाइम एंड सेफ्टी स्टॉक वाली जो काम है, ये आप कैसे कर सकते हैं, बिजनेस कैसे इसको मैनेज करता है. सो सी योर मैक्सिमम लेवल इज 3400 बॉटल्स, यानी जितना आप स्टोर कर सकते हैं अपने वेयर हाउस में स्टोर में, दैट इज 3400. मिनिमम लेवल इज 1400, विच मीन्स कि आप बेसिकली मिनिमम से नीचे नहीं जाना चाहते, ऑल्दो यू स्टिल हैव 1400 अभी तो, ठीक है. बट सेफ्टी स्टॉक आपको कहेगा जस्ट इन केस अगर आपका मिनिमम लेवल भी नीचे आ जाता है एंड यू डोंट गेट योर इन्वेंट्रीज बैक, you still have a safety stock of 1000 bottles. यानी just in case if you don't get your supplies on time, तो फिर आपके पास सेफ्टी स्टॉक भी है in order to fulfill the demands and needs of the customers. ठीक है, अब how do we do that? एक चीज होती है लीड टाइम, द टाइम इट टेक्स फॉर द रीऑर्डर सप्लाई टू अराइव. फॉर एग्जांपल अगर मैंने आज रीऑर्डर किया है कि सर मुझे आप 1000 बॉटल्स ला के दें, तो हो सकता है वो 7, इस एग्जांपल में वो 7 डेज ले रहा है. यानी एट दिस टाइम जब मैंने इधर ऑर्डर किया है तो वो 7 डेज बाद मुझे अपना डिलीवर करेगा मेरी सप्लाईज. ठीक है, दैट्स अ लीड टाइम. उसको दिमाग में रखते हुए कंसिडर करते हुए वी हैव टू वी हैव टू सेट अ रीऑर्डर लेवल. अब आपको समझाते हैं ये क्या चीज़ है. देखो जी, इफ यू हैव मैक्सिमम लेवल, ठीक है, 3400 बॉटल्स आपके पास पड़ी हुई हैं, राइट. अब ऑब्वियसली सेल हो रही है, सेल हो रही हैं. एट 2400 लेवल आप रीऑर्डर कर देते हैं कि यार अब आई नीड बॉटल्स. ठीक है, अब आप कितना रीऑर्डर करेंगे वो अभी अभी आपको पता है, इट्स नॉट 1000 बॉटल्स. देखो अब लीड टाइम है 7 डेज, यानी इस पॉइंट पे जब आपने रीऑर्डर किया है तो ऑब्वियसली वो 7 दिन बाद पहुंचेगी. 7 दिन बाद आपकी फर्दर सेल्स हो रही हैं और डेटा ये बता रहा है जी 1000 और बॉटल्स बिक गई. तो एट दिस पॉइंट 1400 जब बॉटल्स रह जाएंगी तब आपको अपनी सप्लाई मिलेगी, राइट. और तब आप, क्योंकि इस लेवल पे आप 2000 बॉटल्स ऑर्डर कर रहे होंगे, क्योंकि देखें यहाँ पे पहुंच गई आपकी सप्लाईज जब 1400 बॉटल्स थी, जब 2000 बॉटल्स और पहुंच गई तो अगेन रीस्टॉक हो गया पूरा 3400 पे. सिमिलरली सेल्स हो रही है 2400 पे आपने ऑर्डर किया,
वो 7 दिन बाद आई और 7 दिन बाद और सेल्स होगी 1000 की, यहाँ पे आपने 2000 बॉटल रिसीव की तो फर्दर मैक्सिमम चला गया। बट जस्ट इन केस अगर लीड टाइम ज़्यादा हो जाता है तो यू स्टिल हैव अ सेफ्टी स्टॉक ऑफ 1000 बॉटल्स, तो वो थोड़े से अरसे आपको और सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, सो दैट स्टॉक आउट नाउ। तो सेफ्टी स्टॉक है जी एक्स्ट्रा इन्वेंट्री टू रिड्यूस द रिस्क दैट द आइटम विल बी आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स कि आप एक रीऑर्डर लेवल सेट करते हैं, उसके बाद क्योंकि इट टेक्स लीड टाइम, अगर लीड टाइम जीरो होता तो मैं सिर्फ यहाँ पे 1000 बॉटल मंगवाता फिर ऊपर चला जाता, बट क्योंकि ऑब्वियसली टेक सम टाइम टू फॉर द सप्लाईज टू रीच एट योर प्रेमिसेस, तो ऑब्वियसली आप उसको माइंड में रखते हुए फिर मिनिमम लेवल पे यू आर बेसिकली फोकसिंग ऑन गेटिंग योर सप्लाईज एट दिस पॉइंट एटलीस्ट, ताकि आपका फिर रीस्टॉक हो जाए टू द फुल। ठीक है, सो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रीस्टॉकिंग। Lean production क्या है जी? Production refers to the various techniques the firm can adopt to reduce wastage and increase efficiency. Lean production का काम है जी wastage को कम करना है और efficiency productivity को improve करना है। 8 types of wastage होते हैं that can be avoided by the firm. शॉर्टकट है बाय द नेम ऑफ टिम वुड्स, यानी कौन कौन सी वेस्टेज होती हैं आपकी। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीथिंग स्टैंड्स फॉर समथिंग, ठीक है, TIMWWDS। ट्रांसपोर्टेशन, यानी जो मूविंग आइटम्स और इंफॉर्मेशन में जो वेस्टेज होता है रिसोर्सेज का, इन्वेंट्री का, यू हैव टू ओवरकम दैट। ठीक है, एक वेस्टेज ये होता है। देन इन्वेंट्री का वेस्टेज, इन आइटम्स और इंफॉर्मेशन दैट कस्टमर हैज नॉट रिसीव्ड। मोशन, एक्सेसिव मोशन या मूवमेंट विद इन वर्क स्पेस, यानी अगर ज़रूरत से ज़्यादा मोशन हो रहा है, ठीक है, यानी आपकी सेटिंग ऐसी हुई हुई है कि जहाँ पे मोशन बहुत ज़्यादा है यानी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, इट्स नॉट इन सीक्वेंस, तो फिर आप वो भी वेस्टेज पे काउंट करते हैं। वेटिंग, वेटिंग फॉर इन्फॉर्मेशन और आइटम्स टू अराइव, अगेन वेटिंग में हो सकता है ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। ओवर प्रोसेसिंग, यानी डूइंग मोर वर्क देन नेसेसरी, एक प्रोडक्ट बन चुका है, यू आर स्टिल स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दैट रिगार्डलेस कि वो बन चुका है। ठीक है जी। ओवर प्रोडक्शन, डूइंग वर्क बिफोर इट इज नीडेड, यानी यू आर स्टिल वेस्टिंग योर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज में कॉस्ट भी है, मटेरियल भी है, टाइम भी है। देन डिफेक्ट्स, ऑब्वियसली मिस्टेक्स होंगी, रिस्क तो ऑब्वियसली लाई करता है। मिस्टेक्स एंड एरर्स दैट नीड टू बी रीवर्क, तो उस आइटम पे आपने दोबारा से काम करना है फिर, तो डिफेक्ट्स अगेन टाइम भी वेस्ट होगा, रिसोर्स भी वेस्ट होगा। एंड देन स्किल्स, नॉट यूजिंग वर्कर्स टू फुलेस्ट ऑफ एबिलिटीज, विच मीन्स कि जो आपकी वर्कफोर्स है उसमें पोटेंशियल ज़्यादा बट यू आर वेस्टिंग देयर पोटेंशियल, जो स्किल सेट जिससे बिजनेस को फायदा हो सकता था, यू आर नॉट अचीविंग दैट, राइट। अब लीन प्रोडक्शन का काम क्या है कि आपने बेसिकली कम करना है वेस्टेज को एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ठीक है, और एफिशिएंसी। सो उसके मेथड्स क्या हैं, अभी नाउ वी नीड टू नो दिस, नॉलेज के पॉइंट्स हैं। काइजन, काइजन इज अ जापानीज टर्म मीनिंग कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, यानी यहाँ पे स्मॉल स्टेप्स आप लेते रहते हैं in order to improve your performance efficiency. It aims to increase efficiency and reduce wastage by getting workers to get together in small groups and discuss problems, suggest solutions, यानी क्योंकि इसका काम है continuous improvement, तो obviously एक अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है फिर यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, तो आप छोटे स्टेप्स लेके आप प्रॉब्लम्स जितनी भी होती हैं उसके सोल्यूशन फाइंड आउट करके फिर यू हैव टू मूव ऑन, राइट। When Kaizen is implemented, the factory floor, for example, is rearranged by repositioning machinery, यानी आप यहाँ पे वेस्टेज कम करना चाह रहे हैं so that आपकी efficiency increase हो जाए, ठीक है। सो इनोवेशन और काइजन में डिफरेंस क्या है? काइजन जो है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है, सो स्मॉल स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ सकती है बट यू आर टेकिंग वन स्टेप एट अ टाइम। इनोवेशन क्या है? इनोवेशन में यू आर टेकिंग बिग बिग जंप्स, ठीक है जी, लार्ज फास्ट एंड डिसकंटिन्यूस इंप्रूवमेंट्स, बिकॉज अगेन सस्टेनेबल नहीं है ये, आप कितनी बड़ी बड़ी जंप्स लेंगे यू माइट बी मिसिंग आउट ऑन समथिंग। इसमें ये आप हर चीज़ को डिटेल में देख के सोल्यूशन उसका प्रपोज करके फिर आगे चलते हैं। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन काइजन एंड द अदर वन, इनोवेशन, राइट। अच्छा जी, काइजन इफेक्ट आपको समझाने के लिए देखो, बिफोर काइजन वाज इम्प्लीमेंटेड आपका जो था 1 से 2, 2 to 3, 3 to 4 आपने आगे आना था, 4 to 5 फिर पीछे जाना था, यानी इट्स नॉट अरेंज्ड इन अ गुड मैनर। यहाँ पे मोशन एक्सेसिव है, राइट, इन्फॉर्मेशन भी पास ज़्यादा हो रही है देन रिक्वायर्ड, इन्वेंट्री भी आपकी ज़्यादा मूवमेंट हो रही है, ठीक है। फिर व्हेन काइजन इफेक्ट इम्प्लीमेंटेड फिर क्या होगा जी, एक सीक्वेंस में रॉ मटेरियल्स ब्रॉट इन, उस पे फिर एक आपने सीक्वेंस बना दिया 1 2 3 4 5 6 7 एंड आउट इट गोस, ठीक है। सो काइजन में बेसिकली उसने मोशन को कम कर दिया है। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट क्या है इसमें जी, इट हैज रिड्यूस्ड द वेस्टेज एंड इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, राइट। सो फर्स्ट मेथड इज काइजन। बेनिफिट्स क्या हैं? ऑब्वियसली इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, बेटर सेफ्टी,
improved quality, improved communication because again step by step हो रहा है, and higher morale and employee satisfaction because everything is getting streamlined. Then number two is just in time. You need to remember methods of lean production. Lazmi. Just in time KG techniques eliminates the need to hold any kind of inventory by ensuring that supplies arrive just in time they're needed for production. यानी यहाँ पे आप अपनी इन्वेंट्री को तब ऑर्डर कर रहे हैं जब आपको ज़रूरत है, यानी इसमें लीड टाइम ना होने के बराबर है। लीड टाइम क्या था, जितना टाइम लेता है टू अराइव। इसका फ़ायदा ये कि यू डोंट हैव टू होल्ड इन्वेंट्री एनी लॉन्गर, क्योंकि आपको अपनी सप्लाईज तब मिल रही है जब चाहिए। ठीक है, सो देर इज नो नीड टू होल्ड योर इन्वेंट्री विच विल रिड्यूस योर कॉस्ट. Making of any parts is done just in time to be used in the next stage of production, and finished goods are made just in time, so they are needed time they're needed for delivery to the customer. तभी चाहिए जब आपको order मिलेगा and you have the right supplies at the right time. The firm will need very reliable suppliers. Condition ये है, और time lead time should be zero. Zero तो खैर नहीं हो सकता, but very minimal, right? तो जब आप बुलाएंगे ऑर्डर तब आपका पहुंचे जब आपको चाहिए। ठीक है, यानी आप रीऑर्डर लेवल ऐसा सेट करें और आपके रिलायबल सप्लायर्स इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो, ताकि जब आप स्टॉक आउट होने लगे ओनली देन यू रिसीव द आइटम्स एंड देन यू मेक देम, यानी स्टोरेज कॉस्ट आपकी बहुत कम हो जाएगी। सो हाउ डज इट हैपन? कस्टमर प्लेसेस ऑर्डर, जब जैसे ही कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया फिर इन्वेंट्री मैनेजर कॉन्टैक्ट सप्लायर्स। जस्ट इन टाइम का मतलब ये, जैसे ही ऑर्डर मिला फिर उसने सप्लायर को कॉन्टैक्ट किया, सप्लायर ने भिजवाए रॉ मटेरियल्स, वो प्रोडक्शन लाइन में है, प्रोडक्शन लाइन ने फिर डिलीवर कर दिया द गुड्स टू द कस्टमर। दिस इज व्हाट जस्ट इन टाइम मीन। सो इन्वेंट्री होल्ड करने का कॉन्सेप्ट यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। Benefits क्या है जी? Reduces cost on storing raw materials, less investment in raw material obviously because you don't need to hold them, speeds of manufacturing process as material is available readily, यहाँ पे स्टॉक आउट होने का भी चांस कम हो जाता है। एलिमिनेट्स लीड टाइम, लीड टाइम फिर ऑब्वियसली लीड टाइम की कंसिडरेशन नहीं रहती फिर। हेल्प्स इन शॉर्टर प्रोडक्शन रन्स एंड एलिमिनेट्स वेस्टेज, टाइम भी नहीं हो वेस्ट हो रहा है, इन्वेंट्री भी नहीं हो रही, ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं। However, lead to potential supply chain destruction का मतलब ही यही है कि just in case अगर for any reason आपकी supplies ना पहुंच सकी तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। Manufacturer have no margin to make errors, unable to meet any unexpected order. यहाँ पे तो आप expected levels पे जा रहे होंगे ना, अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा order आ गया then it might be a very big problem for you to fulfill that. And no time for renegotiation with the customer because once the order has been placed and that is it. उसके बाद फिर आप change नहीं कर सकते। The first one was Kaizen, then your just-in-time methods of lean production. The third one is cell production. Cell production का concept क्या है जी? Production line is divided into separate self-contained units. यानी production line में जितने भी basically units हैं, आपने उनको सब units को separate किया and each making a part of the finished good. यानी basically before क्या हो रहा है जी? Parts are processed and moved between different departments in large lots. यानी एक काम हुआ फिर दूसरा काम हुआ फिर तीसरा काम हुआ। यहाँ पे आपने हर यूनिट को सेपरेट किया और हर यूनिट बेसिकली एक फिनिश गुड बना रहा है जिसको आपने सिर्फ कंबाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी इंप्रूव है। सो पार्ट्स आर कंप्लीटेड विद इन द सेल इन स्मॉल लॉट्स, हर लॉट में पार्ट कंप्लीट हो रहा है, बजाय इसके कि पहले एक लॉट में उसका एक काम हो फिर दूसरी लॉट में दूसरा काम हो एंड देन इट becomes a finished good। नहीं, यहाँ पे आपने डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड किया एंड ईच लॉट, ये जो आपको ईच लॉट नजर आ रहा है इसमें प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, so now you are producing more in less time, so that's what cell production does। ठीक है, cell each making a part of the finished good। तो अब आप जब ये सारे obviously एक एक पार्ट बना रहे होंगे तो फिर it's very easy at the end of the production कि सबको combine करके you end up with the finishing product। ठीक है, then methods of production तीन है, job, batch and flow। डिफरेंस क्या है, डेफिनेशंस क्या है? जॉब प्रोडक्शन में यूज टू प्रोड्यूस वन ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी एक प्रोडक्ट बनाएंगे, कस्टमाइज्ड होता है ऑफन बिकॉज वन ऑफ अ काइंड होता है ये, either it's handmade or by machinery who complete one item before starting the next। फॉर एग्जाम्पल टेलर हो गया, हर एक के कपड़े डिफरेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल घर हो गए, कंस्ट्रक्शन कंपनी, हर एक के घर डिफरेंट होते हैं। एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट अनलेस वो बैचेस में बनाए, ठीक है, वील मूव ऑन टू दैट। एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है क्योंकि जो कस्टमर चाहिए वही आप दे रहे हैं उसको। क्वालिटी स्किल वर्कर्स चाहिए बिकॉज यू नॉट एवरीवन कैन मेक अकॉर्डिंग टू द कस्टमर, एंड वेरिड वर्क विच मीन्स लेस बोर्डम एंड मोर मोटिवेशन। ठीक है, उसको डिफरेंट डिफरेंट टास्क मिल रहे हैं, डिफरेंट साइजेस मिल रहे हैं, डिफरेंट डिजाइन मिल रहे हैं, तो वो भी खुश है, द वर्कर हिमसेल्फ। Then slow and time consuming because you have to fulfill each exact requirements of everyone।
हाई कॉस्ट है क्योंकि ये स्ट्रीमलाइन नहीं हुआ होता, ठीक है। यानी अगर आप एक बैच में या एक ग्रुप्स में बना रहे होंगे, आपको कॉस्ट कम पड़ेगी। यहाँ पे वो चक्कर नहीं है। डजंट यूटिलाइज मशीनरी वेल, क्योंकि मशीनरी जो है वो स्टैंडर्डाइज गुड्स को ज़्यादा बेहतर बना सकती है बनस्बत इसके कि वो आपके कस्टमाइज गुड्स को बनाए, ठीक है। दिस इज व्हाट जॉब प्रोडक्शन इज, जो वन ऑफ अ काइंड होता है। बैच प्रोडक्शन में बैच कहते हैं ग्रुप को। तो द गुड इज बीइंग मेड इन ग्रुप्स अलाउंग स्मॉल चेंजेस टू बी मेड बिफोर प्रोडक्शन स्टार्ट्स अगेन। तो ऐसे गुड्स होते हैं जो ग्रुप्स में बन रहे होते हैं, बैचेस में बन रहे होते हैं, इसमें वेरिएशन बिटवीन द ग्रुप्स होती है, more items produced, तो this will also cause economies of scale, यानी lower unit cost. हाउएवर टाइम बिटवीन बैचेस ज़्यादा लग जाता है, स्टॉक आपको ज़्यादा चाहिए क्योंकि ग्रुप्स में बनाने, एंड लेस स्केल्ड और स्टाफ बोर्ड, क्योंकि ग्रुप्स भी काफ़ी बड़े बड़े हो सकते हैं, तो यू कीप ऑन प्रोड्यूसिंग द सेम गुड्स एंड अगेन एंड अगेन। एंड द लास्ट वन इज फ्लो प्रोडक्शन। इसमें सबसे ज़्यादा स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी जो थ्रू आउट द ईयर बनते ही रहते हैं। लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, प्रोडक्शन इज कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप, फिक्स कॉस्ट आर स्प्रेड, यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है क्योंकि योर कॉस्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ आउटपुट। आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स हैं, कंसिस्टेंट क्वालिटी है क्योंकि मशीनरी का यूज़ ज़्यादा है, यूजली ऑटोमेटेड। हाउएवर इनफ्लेक्सिबल है, अगर कोई और चीज़ बनानी पड़ जाए देन इट्स वेरी हार्ड टू अडॉप्ट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा क्योंकि यहाँ पे आपको सेटअप करना पड़ता है मशीनरी एंड फैक्ट्रीज, और अगर ब्रेक डाउन हो जाता है मशीनरी तो फिर योर प्रोडक्शन प्रोसेस विल कम टू अ हॉल्ट, ठीक है। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन जॉब, बैच एंड फ्लो। अब क्या फैक्टर्स आप कौन सा चूज करते हैं, उसके क्या फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्शन मेथड, जॉब शुड बी सेलेक्ट जॉब, बैच और फ्लो। उसका क्या होता है, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ, अगर पर्सनलाइज्ड है, कस्टमाइज्ड है तो फिर ऑब्वियसली आप जॉब प्रोडक्शन करेंगे, अगर स्टैंडर्ड है तो फिर आप फ्लो प्रोडक्शन यूज करेंगे। साइज ऑफ द मार्केट, अगर नीच है तो फिर हो सकता है आप, नीच मीन स्मॉल मार्केट, वी ऑलरेडी डिस्कस दिस, तो फिर आप ग्रुप में या बैचेस में बना रहे होंगे। अगर आपकी जनरल पब्लिक है, पूरी पब्लिक ही, फॉर एग्जाम्पल हैंड वॉश है फॉर एग्जाम्पल, ये तो सारों ने लेना लेना होता है, ठीक है जी। सो दैट वुड बी अ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट, मीनिंग आपकी कंटिन्यूस फ्लो प्रोडक्शन हो रही होगी। नेचर ऑफ डिमांड, अगर स्टेडी डिमांड है, स्टेडी मीन्स गुड इनफ, ठीक है जी, एंड इट मीन्स स्टेडी यानी स्टेबल डिमांड है, तो फिर आपका बैच या फिर फ्लो प्रोडक्शन होगा। अगर वन ऑफ अ काइंड डिमांड है तो दैट विल बी योर अगेन जॉब प्रोडक्शन। एंड द साइज ऑफ द बिजनेस, जो स्मॉल फर्म्स होते हैं उनके पास कैपिटल तो नहीं होता, इतनी मशीनरी तो नहीं होती, तो दे कैन आइदर मेक जॉब प्रोडक्ट्स, यानी दे कैन आल्सो आइदर यूज जॉब प्रोडक्शन और बैच प्रोडक्शन। वेयर जो लार्ज फर्म्स होती हैं जिनकी कंटिन्यूस प्रोडक्शन होती है, ये आपकी ऑटोमेटेड होती हैं, एंड देयरफॉर फ्लो प्रोडक्शन इज पॉसिबल, ठीक है। एंड देन द लास्ट टॉपिक इज टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन। कुछ उसमें टर्मिनोलॉजी है जो आपको याद रखनी है। ऑटोमेशन किसे कहते हैं, इक्विपमेंट यूज इन फैक्ट्री इज कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर्स, यानी जो इक्विपमेंट है व्हेन इट इज कंट्रोल्ड बाय द कंप्यूटर्स टू कैरी आउट द मैकेनिकल प्रोसेसेस सच एज स्प्रे पेंट का कार। अब ये कर रहा कौन होगा जी, अब मशीन कह रही है, बट जरूर ऑटोमेशन में क्या याद रखना है आपने, कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर्स, द लेवल द एक्यूरेसी इज चेक्ड बाय द मशीनरी इटसेल्फ। मैकेनाइजेशन में प्रोडक्शन इज डन बाय मशीन्स बट इज ऑपरेटेड बाय पीपल, सो देयर इज अ डिफरेंस। ऑटोमेशन में इट्स एंटायरली ऑटोमेटेड, आपका काम भी मशीन कर रही है और आपको कंट्रोल भी मशीन कर रही है, ठीक है। मैकेनाइजेशन में काम मशीन कर रही है, प्रोडक्शन मशीन कर रही है, बट दैट इज कंट्रोल्ड बाय द ऑपरेटेड बाय द पीपल। Then CAD, CAM, and KIM. CAD होते हैं जी computer aided designing. Now see we have a lot of technology, graphic tablets आ गए हैं, laptops आ गए हैं। तो computer software that draws items, पहले तो होते हैं ना सिर्फ पेज पे बनाते हैं, अभी भी पेज पे बनाते हैं, and you also transform that into um, on a graphic pad, maybe on a laptop, computer जो भी है। So जब आप when you use technology or computer software to design something, that is computer aided designing. उसमें आप फिर 365 डिग्रीज भी देख सकते हैं, डिफरेंट सिनेरियोज अप्लाई करके भी देख सकते हैं। वेयर कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग क्या है, कैम जिसे कहते हैं, कंप्यूटर्स मॉनिटर द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड कंट्रोल्स मशीन रिपोर्ट सिमिलर टू ऑटोमेशन। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग से लिंक है, और कैड में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग में यू आर प्योरली डिजाइनिंग द गुड्स ऑन टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। एंड देन व्हेन यू इंटीग्रेट द बोथ ऑफ दीज CAD एंड CAM यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग और कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग को आज जब आप कंबाइन करके यूज करते हैं, इंटीग्रेट करके यूज करते हैं, दैट इज नोन एज कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, यानी जिस पे डिजाइन भी हो रहा है, डिजाइन करने के बाद वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चर भी हो रहा है बाय द मशीन्स, ठीक है। देन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल, अब ये क्या होता है, आई एम श्योर यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दिस, कि जब आप मार्ट्स जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वो आपको बार कोड से स्कैन कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल में आपका आइटम्स अपडेट हो जाते हैं, लाइक वी डिस्कस्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, द आइटम डिटेल्स, आपका बिल भी आ जाता है, रिसीट भी आ जाते हैं, प्रिंट भी हो जाता है, उनके इन्वेंट्री रिकॉर्ड भी अपडेट हो जाते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल।
एंड द लास्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एट पॉइंट ऑफ सेल। यहाँ पे फंड की बात हो रही है, यानी पैसे की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर एट द टेल विल बी कनेक्टेड टू द रिटेलर्स मेन कंप्यूटर एंड डिफरेंट बैंक्स। तो बेसिकली जब आप स्वाइप करते हैं अपने कार्ड्स, ठीक है, इंस्टेड ऑफ गिविंग कैश आप क्या कर रहे होते हैं, स्वाइप करते हैं या ट्रांसफर कर रहे होते हैं पैसे। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एट पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है जी, तो एट पॉइंट ऑफ सेल जब भी आप स्वाइप करते हैं क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, दैट इज व्हेन दिस कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड, राइट। कॉन्स प्रोस क्या है जी, बेसिकली आपके एक तो सिक्योरिटी, एक तो टेक्नोलॉजी के प्रोस क्या है आपके। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दैट। एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है, आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है, लीडिंग टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है जी, मोराल हाई हो जाते हैं, मोटिवेशन ज़्यादा हो जाती है, बोर्डम कम हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड कॉन्स क्या है कि हाई इनिशियल सेटअप आपको चाहिए टेक्नोलॉजी इंप्लॉय करने के लिए, स्मॉल बिजनेस के अवेलेबल नहीं होता। माइट मेक द लेबर्स रिडंडेंट, यानी जो वर्कर्स होंगे मैनुअल उनकी जगह ये ले सकता है। ठीक है, तो ये उसके मसले हो सकते हैं। ब्रेक डाउन हो जाए तो फिर प्रोडक्शन हॉल्ट हो जाती है, राइट। सो दिस वाज इट। we'll be continuing with the two other chapters, two other topics of the same chapter। ठीक है, तो इसके टोटल 3 हैं, तो इंशाल्लाह परसों तक we'll be done with unit number 4 and then only 2 will be remaining। So stay tuned guys and do watch it till then, till we meet next time, take care, Allah Hafiz।